Hello guys, good evening everyone. How are you all? कैसे हैं बच्चे लोग? Is everything clear? Video and audio is everything clear? Guys, tell me, is voice is clear? Video is clear? Anything more? Namaste, namaste, present. Good evening, good evening, good evening. Siku bhai, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, guys. Let your friends to join fast. Tell them, guys. Tell them your friends to join fast. Good evening, Kavya. Good evening, good evening. Yeah, I am good. Only a little cold and cough. Yes, good evening. So, guys, we are going to start the session. So, first of all, most of the KPs are students. For KPs are students are like family. So, most of the KPs are students are like KPs are family. You know it very well. So, one of my family member, and regularly we talk in our classes also regarding him. So, one of the closest student to me, and he is three times GATE top ranker. He got the job in IOCL, he got the job in NBCC, and also now he is working in BIS, Bureau of Indian Standards, as assistant director. And he is not from IIT, he is not from NIT. Why I am repeating, why I am stressing this? Most of the students feel that cracking GATE with the top rank is only possible to IITians, only possible to NITians. But listen this, he is from a local engineering college, COEP, from Pune. Not an IITian, not an NITian. And he got top rank in GATE for three times, 2019, 20, 21. And his life journey, his preparation journey, his struggle itself is a motivation for an ordinary average student. From ordinary average student from a local college to becoming top ranker in GATE examination or scientific officer, assistant director in BIS. Kitna struggle chahiye, how much struggle he has to work. So he himself is a motivated person to the students. For all who are you here, I know about you. You are also from normal engineering college. Average student like me, you are also like him. So you are also going to think to achieve top rank. So let's welcome our topper, Asutosh Agrawal. Welcome, Asutosh. Good evening, sir. Good Good evening. evening, everyone. Welcome. So welcome to our YouTube session. So how are you, Asutosh? I'm fine. The introduction to Damdar tha actually So nice. it's not ended, Asutosh. So now Yeah, you got Air 37 in Gate 2021, Air 150 in yeah, Gate 2020, Air 147 in 2019. Three consecutive years, top rank. So maybe it is yes, number matters. 150, 147. The marks will be only 2 to 3 marks difference, not more than that. So you should be yeah, among the toppers of the GATE exam. And also your ex-senior project executive in NBCC, ex-IOCL officer, and the scientist B from BIS. So from a ordinary, normal student life to become achieving this much heights, how you feel now? I feel like when I was like preparing at that time, I was not thinking at the first like for so much good rank and that. Okay, but like after achieving that rank, you know very well that we were not happy with 147 rank, right? Yeah. So, but after that 150 came, so much disappointed, no job, nothing. But after like that 37 rank was unexpected rank at that time. I Unexpected. have given like Don't say to unexpected because your 2 years hard work reflected in the 37 rank. It's not came by 1 day, 2 days, 1 month, 2 months. No, 2 years, 2019 and 2020 hard work reflected in 2021.
Don't say it as an But in expectation. 2021, I have given casually. That was the like my meaning. Yeah, Like it was unexpected at that you time. you are suffering from COVID also at that time before exam. Ah, exactly. So it happened. Hmm. And after that, when I got a 37 rank, I was very, very happy. Like I achieved finally like double digit rank. Uh, And I told KP sir also, he was very happy after like 3 years. I like achieved a so much good rank. And like then the opportunities has means like they were coming. Like first IOCL came. Before that, double Airport Authority of India also. Like I was selected in that also. oh yeah, also So good. after that, I joined NBCC. Then I joined. Now I'm in Bureau of Indian Standards. Ashutosh, if you talk in Hindi, our students will be very happy because most of the students from North India they feel very comfortable with Hindi. Even though I don't know that much Hindi, but I'm whatever also comfortable with Hindi only. you know Hindi, na, you can continue with Hindi. They feel very happy for it. Okay. Yeah, yeah, okay, okay. So guys, the journey of Asutosh gives you a information that the great success can't be achieved by only 1 year, 6 months. It needs a hard work, long term dedication, and consistency. Getting 147 in the first attempt, and he is not adjusted to his life. 147 is enough. I can join some IIT and I can take it. And after that, COVID came, his situation became worse. But still, he is struggling with the internal issues, personal issues. But still, he prepared well, even during COVID time. Then he got 150, unfortunately. But still, he does not lose the hope. That is very important aspect in student life. Don't lose the hope until unless you get the top rank, until unless you get whatever you want. Then only you can go ahead with it. So, Asutosh, can you say how your journey begins? How you got the motivation to enter into gate preparation and how started the journey? Actually, college में I was average student. Like like 7.2 pointer is my aggregate. तो फर्स्ट सेम में तो लाइक 6.23 पॉइंटर ही था मेरा. एंड आफ्टर दैट सर योर वीडियो पॉज्ड आई थिंक. आई कांट सी यू. Something error going on. You can continue. I will check Okay, it. okay. So after that, when I joined ACE Academy, so मुझे मतलब सिविल का सी भी नहीं पता था. लाइक कुछ भी नहीं पता था सिविल का, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं सिविल में अपना करियर बनाऊंगा एंड हाउ विल आई डू दिस. लेकिन जब फिर सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कि एक रहता ना क्राउड पूरा का पूरा एक तरफ जाता है, तो उसी क्राउड में मैं चले गया. देन जब क्लासेस शुरू हुए तो वो मुझे मतलब समझ में आने लग गई चीजें. तो जब समझ में आने लग गई तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी विद दैट, वेरी कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट्स. सो जब when you are comfortable with the subject, you more you put more efforts in that. So मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं प्रैक्टिस करने लग गया, मेहनत करने लग गया. देन एनवायरमेंट सब्जेक्ट भी आया. सो उस समय केपी सर एस में पढ़ाते थे. एंड उन्होंने फिर वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई दैट वाज वेरी डिफरेंट. उन्होंने हर समय मोटिवेट किया मुझे, हर समय बताया, स्ट्रेटेजीज बताई कि कैसे करे, क्या करे, कैसे करे. और स्टार्टिंग में इफ जैसे मैंने अचीव नहीं किया था 147 रैंक, राइट. तो आई वाज एवरेज स्टूडेंट. सो मुझे देख मतलब मेरा परफॉर्मेंस कहाँ देखेगा, मतलब जो भी टीचर रहेंगे वो कहाँ देखेंगे, क्लास में देखेंगे कि हाउ इज आंसरिंग एंड हाउ इज मतलब कैसा अटेंशन दे रहा और वो कैसे सवाल पूछ रहा है, राइट. सो उस पे से मतलब उन्होंने गेस किया एंड ही फाइंड द पोटेंशियल इन मी. एंड फिर बाद में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू कैन अचीव अ गुड रैंक एंड दैट मतलब ऐसे वे दिखाया कि कैसे कर सकते हैं. देन मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला. मुझे होप्स बढ़ते गई. वी एम फॉर अ सिंगल डिजिट एट दैट टाइम. यस सर, राइट. Yeah, तो yeah. तो टेस्ट सीरीज होती थी, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते थे. तो कम जब आते थे मार्क्स, आई हैव गिवन 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इन फर्स्ट अटेम्प्ट. Please तो listen this, guys. 50 plus full length test. People are questioning me. टेस्ट सीरीज चाहिए नहीं चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम को चलेगा ऐसा पूछ रहे.
So No, test no, I series will play very important role in the journey of Astosh. यस। Hmm. तो कभी भी लाइक कम मार्क्स आते थे तो लाइक रोना भी हुआ है, क्योंकि जब तुम कोई चीज लाइक बहुत ज्यादा उसमें डूब जाते हो, लाइक व्हेन यू नीड समवन समवन आई एम सेइंग Need व्हेन यू someone. नीड समथिंग, हाँ व्हेन यू नीड समथिंग, सो उसके बारे में अगर तुम निगेटिव होते हो तो बहुत बुरा लगता है, इट इम्पैक्ट्स टू मच। तो लाइक रोना भी आता था, तो फिर मैं मॉम से डिस्कस करता था, तो मॉम के भी ये वर्ड्स रहते थे कि जब मॉम हैंडल नहीं कर पाती थी तो मम्मी बोलती थी कि एक काम कर, केपी सर से बात कर ले केपी सर क्या बोलते हैं। तो हमेशा लाइक मेरा जो निगेटिविटी है वो केपी सर से बात करने के बाद एकदम अचानक चेंज हो जाता था। लाइक मैं मम्मी भी मेरी बहुत ट्राई करती थी मोटिवेट करने की, बट उस लेवल पे कर नहीं पाती थी बट केपी सर ने काफी लाइक ये दिया। और स्पेशल बात ये है कि तब मेरे पास रैंक नहीं था। लाइक आफ्टर गेटिंग 147 मेनी पीपल हेल्प मी, but before getting 147 rank there was only one faculty. Like many people knew that I have potential वगैरह, but in the like personal connection मेरा केपी सर के साथ था, हमेशा मैं continuously like बात करता था। अब मैं जो डाउट्स पूछता था वो सारे टीचर्स को बताता था, वो अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, वहां तक वो लिमिटेड था। तो लेकिन केपी सर के साथ थोड़ा पर्सनल भी हो गया था कि जब भी मेरे को डिमोटिवेट फील होता था, मोटिवेशन चाहिए था, तो लाइक केपी सर लाइक वे दिखाते थे कैसे वहां तक रीच करना है वगैरह। तो लाइक आई फील कि मेरे जो लाइक रैंक है उसमें केपी सर का बहुत बड़ा रोल मतलब प्ले होता है। तो आई थैंक्स टू केपी सर, लाइक अरे आई अचीव्ड सो मच गुड रैंक बिकॉज ऑफ यू। फिर उसके बाद लाइक जब 147 रैंक आया तो I was not happy because I told you कि like we were हाँ, expecting like top 10 rank, top and 10. I was achieving that rank also in many exams, like in mock test also. Yeah. I remember in computer based test of ACE was there. Hmm. I got second rank, and in Medici CBT I got 16th rank at that time. So So what you feel that made you not getting in top 10 in the first attempt? What is the reason? Can you identify any reason like that? actually I thought like my speed is very good, Hmm. and like this speed can like is enough for me. So after that like जब फाइनल एग्जाम था तो वहां पे मैंने मेरी स्ट्रैटेजी हल्की सी चेंज कर दी थी। लाइक आई वाज डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स, तो Hmm. मिस्टेक्स मुझे मिनिमाइज करनी थी। लाइक आई एम लाइक दैट कि जो सिली मिस्टेक्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो लाइक नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते, लाइक एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। गेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाए, वो मैंने सॉल्व कर लिया। बट जो लाइक जो पास भी नहीं होते वो कर पाते हैं, वो वहां पे मैं मिस्टेक कर देता था, ऐसी चीजें होती थी। तो लाइक ऐसा होता था। तो वो मिस्टेक्स कम करने के लिए मैंने ऐसा डिसाइड किया फाइनल एग्जाम में कि मेरा टाइम तो इनफ है, तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत स्लो सॉल्व करता हूँ, लाइक थोड़ा सा स्पीड कम करता हूँ और एकदम ध्यान से पढ़ के करता हूँ। तो मैंने एप्टीट्यूड में लाइक आई रिमेम्बर वन क्वेश्चन वाज देयर कि एक दीवार है, उस पे एक लेडर है और सीधा हाइपोटेनियस लगाना था शायद। तो उसमें भी मैंने इतना समय दिया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन आया था मुझे, लाइक रैंडम होता है ना हर किसी का। हाँ. तो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी। तो उसमें भी मतलब मुझे याद है वो सीन कि लाइक उसमें मैंने टाइम लगाया था। तो जब टाइम बढ़ता गया तो आखिरी में थोड़े स्पीड बढ़ाना पड़ा, तो शायद उस वजह से मैंने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर दिए थे। और लाइक जब रिजल्ट आया तब देखा, चेक किया, तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स थे So this is जो नहीं होने inexperience, चाहिए no? थे। This is simply inexperience. First time you are writing, stress levels also will be very high. Tension also will be there. यस, माइंड में प्रेशर यस, बहुत बड़ा हो एक्सपेक्टेशंस जाएगा, आल्सो ज्यादा हो वाज वेरी जाएगा. गुड। So हाँ। that So mindset also. I'll suggest one thing from this. We can conclude one thing, like Hmm. whatever you do in a test series, whatever you do, just don't change it in the final exam. Just don't change it. मतलब थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। जैसा आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, जैसे स्ट्रैटेजी रखते हो टेस्ट सीरीज के वक्त, सेम स्ट्रैटेजी सेम चीजें आपको वहां पे मेंटेन करनी है। भले ही आप वो आपको कम लग रहा है कि लाइक इट्स नॉट गुड एट दैट टाइम, स्टिल यू फॉलो द सेम। क्योंकि अगर तुम चेंज करोगे तो वो एकदम से इंस्टेंट चेंज हो जाएगा आपके लिए, और वो लाइक काफी चीजें बिगाड़ सकता है आपका। अखिलेश वाबले आ गया. वो बोल रहे वी बोथ मेंटर्ड हिम. अखिलेश, हाउ आर यू अखिलेश? कैसे हैं आप?
So you got in the second attempt. First attempt you got 147. Second attempt you got 150. What is your state of हाँ, mind when you got in the second attempt more rank than first attempt? And very लाइक वो important, बहुत that state of mind, how you overcome. That is important for the students. No? ओके। तो जब 147 आया था, एट दैट टाइम आई हैड कॉल फ्रॉम आईओसीएल आल्सो। Hmm. आईओसीएल से कॉल आया था, बट वी टुक अ डिसीजन कि एक साल देते हैं। Hmm. मैं एमटेक के लिए नहीं जा सकता था फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, बट कैसे तो भी मनाया कि एक साल दे देते हैं Actually, I कुछ would भी like to करके। say that force behind second attempt is mine only. I pushed you हाँ, towards second एग्जैक्टली attempt. एग्जैक्टली केपी सर ने फोर्स किया था कि लाइक एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग टू सिंगल डिजिट रैंक, राइट। Hmm. सो ऐसा हुआ कि जब 147 आया तो उस पे आईओसीएल की अपॉर्चुनिटी तो आ गई थी, बट आई स्किप दैट। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ईएससी देते और लाइक गेट देते हैं। अगर ईएससी बिगड़ भी जाता है तो गेट ही मेरा बिगड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा, लाइक दैट आई थॉट। लाइक 147 से बुरा और क्या हो सकता है। तो एट दैट टाइम आई सॉ कि 147 से बुरा क्या हो सकता है। Hmm. इन 2020 रेलवेज निकाल दिया, दैट Hmm. लाइक सीट्स बहुत कम हो गई थी, ईएससी का वो मैटर हुआ। फिर बाद में उसके बाद गेट का भी मैंने लाइक बिगाड़ दिया था। पता नहीं, लाइक आई डोंट नो कि उस समय क्या हुआ था, बट 150 रैंक आया, वहां पे भी मिस्टेक्स काफी हुए थे, लाइक लगभग 15 मार्क्स के सिली मिस्टेक्स थे आई हैव सीन। फिर उसके बाद लाइक मैंने लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में फिर कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और फिर फाइनेंशियली भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो तब केपी सर के लिए मैंने काम किया था, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था, फर्स्ट लेक्चर्स थे मेरे। लाइक वो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर वो वीडियो देखोगे तो लाइक कूलर पे कार्डबोर्ड रख के उसके मोबाइल लगा के 8 जीबी, लाइक 16 जीबी स्पेस वाला मोबाइल लगा के रिकॉर्ड करना छोटे छोटे क्लिप्स। और फिर उसके बाद मैं लाइक अन अकेडमी में भी पढ़ाया हूँ। फिर बाद में लाइक आई टॉट लाइक इंडिविजुअली ऑल्सो, अग्रवाल्स अकेडमी करके खोला था। और फिर बाद में मुझे एस से भी ऑफर आया था, तो आई वॉज द फैकल्टी इन एस ऑल्सो। आई एम द फैकल्टी इन एस ऑल्सो, वॉट एवर विल सी। तो ऐसा था, तो उस समय ऐसा था कि मेरा मोटिवेशन मतलब बहुत कम हो गया था एक्चुअली, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर देन 147 इन Hmm. सेकंड अटेम्प्ट। तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही थी, अगर हम गेट थ्रू देखे तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और लाइक कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। और मैं सर से बात भी करता था कि लाइक क्या होगा, गलती की क्या गेट करके, कोई और चीज कर लेता तो शायद अच्छा होता। गिटार सीख लेता तो आज तक शायद 2 साल इतनी मेहनत कर लेता तो एक अच्छा गिटारिस्ट बन जाता शायद। तो वो तो अभी भी नहीं सीखा वैसे, बट ऐसा लगता था कि बहुत डिमोटिवेट लगता था कि क्या करेंगे क्या नहीं। तो सर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि हार मत मानो, एक और अटेम्प्ट दे दो। तो मैंने फॉर्म भर दिया था, सर के फोर्स में ही भरा था कि फॉर्म भर के रखा था। लेकिन मेरे को टू बी ऑनेस्ट सर, उस समय बिल्कुल मन नहीं था फॉर्म भरने का, जब Third आप attempt, na फोर्स किए 2020. थे जब आप। Hmm. तो 2020. हाँ, तो मुझे मतलब बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैं भरा क्योंकि सर ने इतना फोर्स किया था। और कुछ लोगों ने भी फोर्स किया था, तो वो पूरा ये इम्पैक्ट होके फॉर्म भरा। आप देन आप कुछ लोगों बोलेगा बड़ा ना, पढ़ाई तो किया नहीं था। स्टूडेंट्स विल आस्क इज इट योर गर्लफ्रेंड. कुछ लोग भी फोर्स किया तो क्या बोले ना, दे विल आस्क इज इट योर गर्लफ्रेंड. Okay. तो नहीं, एक्चुअली आई कांट सी द कमेंट्स क्या। So in व्हाट यू live सेड chat, सर? you can go for a YouTube in live chat is हाँ there. हाँ, ओके You ओके, click on हाँ live ओके chat, ओके, you'll get it. हाँ हाँ हाँ। Okay. And they're asking what is your marks in 150 rank? How many marks ओके, you got for 150 rank? एट दैट टाइम आई थिंक 80 पॉइंट समथिंग वाज देयर। Okay. So 80 point something, guys. And what is your uh, in hand salary in IOCL? People always think about money only. इन हैंड सैलरी लाइक ट्रेनिंग के वक्त आई गॉट 65,000, नियर अबाउट 68,000, Okay. नियर अबाउट। बट आफ्टर दैट यू विल गेट एचआरए ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। Hmm. और फिर बाद में लाइक इफ यू बाय अ कार, देन उसका कार का मेंटेनेंस के लिए 8,000 लगता है। तो लाइक मेरे काफी दोस्त लोग हैं आईओसीएल में, तो रफली यू विल गेट 90 to 1.2 lakhs
90,000 to 1.2 lakhs you can get. वो See guys, वेरी करता है कि आप कौन से लोकेशन पे हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, hmm, और कैसे कैसे आप जुगाड़ करके लाइक अलाउंसेस का फायदा उठा रहे हो, वो सब मैटर करता है. बट बेसिकली मैं बोलूंगा कि कोई भी पीएसयू में जाने से पहले ये दिमाग में रखना कि तुम्हारी सैलरी जो रहेगी वो लाइक 70 to 80,000 इन हैंड रहेगी, एवरेज 70 to 80,000. and you उससे can ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना. you can add your stay in Kolkata also. They know about it. हाँ, एक्चुअली लाइक आईओसीएल का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है उसकी ट्रेनिंग. लाइक 5 महीने के लिए ट्रेनिंग हुई थी, एंड द ट्रेनिंग वाज इन कोलकाता एंड आसाम. और 3 महीने के लिए शायद हम कोलकाता में थे, तो उसमें से 2.5+ महीने हम लाइक आईटीसी रॉयल बंगाल, आपने देखना, सर्च करना कभी गूगल पे, इट्स अ 5 स्टार होटल, वहां पे हम 2.5+ महीने रहे. लाइक 5 स्टार होटल में हम हॉस्टल बना दिए थे, लाइक शॉर्ट्स में घूमते थे वगैरह, ये सब सीन होता Yeah, था. तो whenever you put लाइक status, na, on the day in the class, I told about you. He's enjoying in ITC Royal Hotel if you get the rank. So you also get there because few people from the Kolkata, West Bengal, they know the value of ITC Royal Hotel. So या they are always talking. Sir, we go there like that, we stay like that. They are always talking. So I told Astosh is staying there. So once you get the top rank, you get IOCL training. now IOCL training is like awesome. If they will not provide you the 5 star also, if they will provide you the guest house of them, their guest house is also like a 5 star only. So Okay, like they are asking about what is your study pattern, how you maintained, how you prepared, how many hours you prepared, what is schedule, how you made a schedule, like that. okay, so the main task was in first attempt only. So I'll talk about the first attempt only, like how I prepared at that time. So मेरे क्लासेस चलते थे सैटरडे संडे, और मंडे टू फ्राइडे कॉलेज होता था, जो मैं कभी गया नहीं. नेवर आई वेंट आफ्टर ज्वाइनिंग द लाइक क्लासेस. Hmm. फिर बाद में उस वक्त लाइक मंडे टू फ्राइडे में करता था कि जो भी क्लासेस होती थी, जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, उसको पूरा तब के तब प्रिपेयर करो और उसके नोट्स बनाओ. नोट्स ऑलरेडी बन चुके रहते थे, बट मैं शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करता था. तो क्या होता है कि बहुत जन पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, सिर्फ ये भी क्वेश्चन होता है सबका, राइट? हाँ. तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैं हर चीज लिखता था, लाइक हर फॉर्मूला लिखता था. एक भी चीज ऐसी नहीं होती थी जो मैं शॉर्ट नोट्स में ना मेंशन करूं. मतलब मैं इतना शॉर्ट लिखूं और उसमें सब कुछ दिख जाए मुझे. दैट वाज माय फर्स्ट शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स एक बार में नहीं बनता है, तुम्हें टाइम लगता है कि शॉर्ट नोट्स को इम्प्रूव, और वो तुम खुद से करोगे. लाइक किसी का शॉर्ट नोट तुम रेफर नहीं कर सकते, और खुद किसी को पूछ नहीं सकते कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए. what you feel you write down in a short thing. like रिवाइज करते समय तुम्हें मदद होनी चाहिए. that's the motive of short notes. So here और you can ऐसा रहता है कि tell जब भी them, तुम, Astosh, here you can yes tell sir, them, is it important to write full length notes by them or they can refer somebody's notes? no no no, you have to write your own notes only. क्योंकि जब भी आप खुद के हाथों से लिखते हो तभी आपको याद रहता है कि हाँ उस पेज पे, उस पेज याद नहीं रहता, बट उस साइड में यहाँ पे लाइक लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखा था, दैट यू रिमेम्बर. तो एक और चीज थी कि लाइक मुझे याद है कि जैसे क्लासेस में सर बहुत ट्विस्टी क्वेश्चंस देते थे हमेशा. तो हमेशा मैंने देखा है कि लाइक जब भी क्वेश्चन आता है और उसके बाद, सॉरी, जब भी पढ़ाते कंसेप्ट, उसके बाद पेज चेंज होते हैं, सबके नए पेज आते हैं, उस पे एक क्वेश्चन आता है. तो जब भी क्वेश्चन दिया जाता था मैं सुनता था बच्चों की आवाज पेजेस की, सब फॉर्मूला देखते थे. बट आई नेवर नेवर हैव डन दैट कि लाइक मैं पेज चेंज करके फॉर्मूला देखूं. मेरा गलत होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अभी गेट एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम लर्निंग. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फॉर्मूला गलत होगा. तो कभी भी होल स्क्वायर होता था, मतलब ब्रैकेट होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर भूल जाते थे. तो जब गलती होती थी, आंसर गलत आता था, मैं फट से दे देता था कॉन्फिडेंस के साथ, और सर बोलते थे नहीं गलत है. तो थोड़ा बुरा लगता था, फिर देखते थे क्या गलत हुआ, तो फिर वो याद रह जाता है. जब लाइक ऐसी गलती होती है तो याद हो जाता है कि हाँ वहां पे स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए. और वो कभी कभी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर दे देते, बाहर चाहिए रहता है. ऐसे काफी फॉर्मूलेज है सिविल इंजीनियरिंग में, काफी लाइक बाकी ब्रांचेस में भी. तो जब आप बिना देखे, बिना देखे उसको तभी के तभी याद करने की कोशिश करोगे और बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपकी इफिशियंसी टू रिटेन दैट थिंग्स विल इंक्रीज. आई थिंक सो.
So mistakes, from the mistakes, learning is very important. So Yes, actually. students are feeling that they have solved the question one time, and next time when the question came, immediately they have to solve correctly. So that is never happen. Exactly. That is never happen. Student mentality, student thinking is like that. Once that was done in the class, दूसरे बार करने के बाद करेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा. ऐसा मत करो, दो बार Exactly. तीन बार चार बार करने के बाद भी करेक्ट आएगा आपको. So that is very important. Learning from the mistakes is very very important. जितने भी ज्यादा गलतियां करना है अभी कर लो, हाँ. ताकि गेट एग्जाम में कम से कम गलती हो पाए. किसी किसी की ज्यादा हो जाती है, वो बात अलग है. So what तो about your revision strategy? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं कोई भी प्रिपरेशन में. Hmm. फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिसिंग. Practicing is means very very important. You have to practice many questions. After that, the important thing is like revision, test series. These three things are very very important. Short notes you have to make. That things will come under the practice only. Like if you write the things, if you make the short notes, like you will retain many things. You will retain for a long time. तो ऐसा होता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि लाइक रिवीजन की बात करूं, तो एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर केपी सर क्लास ले रहे हैं आपकी अन अकेडमी में, तो लाइक क्लास ले रहे हैं और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और वो कॉन्सेप्ट बेस पे सिंपल क्वेश्चन पूछा, लाइक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ऐसा कोई होगा नहीं जो सॉल्व नहीं कर पाएगा. सबके सब सॉल्व कर लेते तब, राइट सर? लाइक एवरीवन विल सॉल्व. Everyone will solve. बट वो सभी के सभी सेम क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे. True. बिकॉज अगर वो कंसेप्ट तुम अभी पढ़े हो तो अभी तुम्हें याद रहेगा. अगर वो कंसेप्ट को तुम याद नहीं रख पाए गेट एग्जाम तक, तो तुम वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो वो कौन सॉल्व कर पाता है? जो उस कंसेप्ट को रिटेन करता है. तो रिवीजन इज लाइक अ कैरियर. एक ट्रक है, ट्रक में मिट्टी भरी पड़ी है, ठीक है, वो मिट्टी है तुम्हारा नॉलेज, इफिशियंसी. अब जैसे जैसे ट्रक चलेगा, तुमको ये ट्रक जो है ये तुम्हारी रिवीजन है. अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तुमको अगर पूरी मिट्टी एक साथ लेके जाना है, मतलब सिविल इंजीनियर हूं तो ऐसा एग्जांपल दूंगा. तो एक ट्रक से मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन लेके जाना है, तो तुमको एक कैरियर लगेगा. दैट इज योर रिवीजन. अगर लाइक तुम बहुत ज्यादा खतरनाक प्रिपरेशन कर रहे हो बट तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो सेम इफिशियंसी तुम्हारी लास्ट मोमेंट पे नहीं रहेगी, तो कोई मीनिंग ही नहीं है उस पढ़ाई को. कोई मीनिंग नहीं है. तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक वो तुम्हारे इफिशियंसी को लेके जाता है गेट एग्जाम तक. तो So जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है. so as an average student, very difficult to concentrate for long time. So how you या manage it in the first attempt? First attempt में you are going to study 14 hours a day. So I made you a timetable like this. 14 hours we divided. We both discussed and divided. You worked यस hard for यस 14 hours. How you यस. managed that long time study? तो एक्चुअली जब भी 14 आवर्स बोलते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि 14 के 14 आवर्स हम पढ़ ही रहे हैं, लाइक सिर्फ लाइक चीजें देख रहे हैं. हाँ. उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है. जैसे होता है कि लाइक प्रैक्टिस होता है, Hmm. राइट, रिवीजन होता है, देन टेस्ट सीरीज होता है, देन उसका एनालाइज होता है, एनालाइज करना रहता है, तो फिर मैथमेटिक्स का भी देखना होता है, एप्टीट्यूड का भी देखना होता है. ये सारी चीजें होती है. तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे मेंटली, तुम ये नहीं सोचना है कि 14 घंटे मुझे पढ़ना है. मुझे ये सोचना है कि मुझे ये स्पैन में ये पढ़ना है, ये हाँ. स्पैन में रिवीजन करना है, ये स्पैन में टेस्ट सीरीज देना है, इसके बाद इतना टाइम मुझे उसको एनालाइज करने के लिए देना है, इसके बाद मुझे 1 घंटे के लिए मैथ्स करना है, 1.5 घंटे के लिए मैथ्स करना है. देन यू कैन डू लाइक मैनेज योर थिंग्स फॉर अ होल डे. आई फील सो. Yeah, तो उसको डिवाइड करो छोटे छोटे चीजों so में. thinking about तो 14 hours at a time, हमको डर लगेगा. So you can हाँ, divide into एग्जैक्टली. 2 hours, 3 hours, 2 hours, 3 hours. That will be very easy. We can achieve the targets easily. Small targets और वो easily. चेंज, और वो चीजें चेंज भी होगी, तो चेंज होगी तो लाइक माइंड उसको रिटेन भी कर पाएगा. मतलब माइंड ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा. अगर तुम कंटिन्यूअस पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हारा माइंड थकेगा ऑब्वियसली, हाँ. क्योंकि एक मोनोटोनी आ जाती है. सीधे रोड पे गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता, घाट पे मजा आता है, हिल्स पे So मजा आता है. Aman Pandey, that is only is explaining na. You can take 2 to 3 subjects, not entire length single subject. You can do practice of questions. You can revise the subject. So you can divide the total time into different aspects, not doing the same activity again and again. Total 14 hours.
you can divide into different activities so that you are not getting bored. एंड आशुतोष आपको इंट्रोड्यूस करेगा, आपका बहुत बड़ा फैन था. आई थिंक ही टॉक्ड विथ यू आल्सो, प्रतीक कापले. ही इज फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट. वो बहुत बड़ा Yes. फैन था आपके लिए. सो ही इज आस्किंग दैट कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसा मैनेज करेगा. कॉलेज में अटेंडेंस हो जाएगा, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हो जाएगा, सेमेस्टर प्रिपरेशन भी हो जाएगा, कैसा मैनेज किया आप? देखो 75% अटेंडेंस चाहिए, मैं मानता हूँ. बट यू आर इंजीनियर, यू नो विच फैकल्टी इज लाइक हाउ इज. ठीक है, तो कौन से लेक्चर को जाना है, कौन से लेक्चर को नहीं जाना है, तुम्हें डिसाइड करना है. असाइनमेंट जो होता है उसको कैसे मैनेज करना है, वो मैं ओवरऑल बता सकता हूँ, मैं डीपली नहीं बता सकता क्योंकि मैं तुम्हारे कॉलेज को नहीं पहचानता, राइट. मैं मेरे कॉलेज को पहचानता हूँ. तो मेरा कॉलेज थोड़ा चिल टाइप ही था, तो मैंने तो पूरा बंक किया है. मैं मैनेज किया हूँ कैसे तो भी, कुछ कुछ लेक्चर्स करता था कैसे तो भी, और 75% अटेंडेंस अचीव कर लेता था. तो कॉलेज, अगर तुम 75% अटेंडेंस अचीव करने की कोशिश भी करोगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में तुम्हें आई थिंक कि पर डे 4 से 5 घंटा जाना पड़ेगा, राइट सर. उसके बाद भी तुम्हारे पास इतना बड़ा समय है, और अगर तुम कॉलेज में हो अभी तो तुम्हारे पास टू अचीव द रैंक ऑल्सो यू हैव गुड स्पैन. तो तो जो भी सुबह का समय होता है, या फिर इफ यू प्रिफर नाइट स्टडी, तो जो भी नाइट का समय होता है वो पूरा प्योरली तुम गेट एग्जाम को दो. ऐसा नहीं कि नवरात्रि आ रही है तो डांडिया खेलने जा रहे, राइट. तो वहां पे तुमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा चीजों में. तो तुम्हारे लिए सिर्फ मेन फोकस ये होगा कि 75% अटेंडेंस लाने की कोशिश करो मिनिमम कॉलेज जाके. अगर तुम्हें जाना है तो बात अलग है, आई विल नॉट कमेंट मिनिमम करो. इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसा गोल चाहिए. थोड़ा गलत हो रहा है आई थिंक कि अगर मैं ऐसा सजेस्ट करूं कि मत जाओ कॉलेज. यू कैन गो. बहुत जन ऐसे हैं कि रेगुलर कॉलेज गए हैं और वो भी 3 घंटा 4 घंटा कैसे तो भी गेट की पढ़ाई करके निकाले हैं. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने अभी देखा कि जॉब में पढ़ाई करना इज वेरी डिफिकल्ट. एट दिस टाइम आई कांट स्टडी, आई कांट मैनेज द थिंग्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. इन बीआईएस हमें सुबह 7 बजे निकल जाना होता है, फिर इंडस्ट्री को विजिट करने पड़ते हैं, वो 150-200 किलोमीटर दूर होता है, 3-4 घंटे का जाने का रास्ता, 3-4 घंटे का आने का रास्ता. तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और तुम तो कॉलेज में ही हो और कॉलेज के पास ही रहोगे और कॉलेज के पास ही पढ़ोगे, तो तुम्हारा जाने आने का समय तो बचेगा. तो आई सजेस्ट कि सुबह का 3-4 घंटा भी, मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो जॉब के साथ भी बहुत अच्छा रैंक क्रैक किया है. तो जब वो मैनेज कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं. बस ये बात होती है उनमें कि उनमें एक ही फोकस होता है कि मुझे कैसे तो भी गेट के लिए समय निकालना है, गेट के प्रिपरेशन के लिए समय निकालना है. ये उनके दिमाग में होता है. अभी हम जैसे लोग चिल हो गए, रैंक आ गया, इट्स इनफ, डन. तो हम उतना नहीं सोचते, इसलिए हमें टाइम भी नहीं मिलता. बट जो जिन्हें लाना होता है, अचीव करना होता है, किसी को आईएएस के लिए प्रिपेयर करना होता है, किसी को आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना होता है, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस होते हैं. तो फोकस होते हैं तो उनको अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कैसे तो भी दिन में से 3 घंटा तो भी निकालना ही निकालना है, 4 घंटा निकालना ही निकालना है, राइट. तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो. कॉलेज को कैसे मैनेज करना है, इट्स ऑन यू बॉस. यू ओनली हैव टू डिसाइड कि कैसे मैनेज करना है. बट उसके अलावा भी इजीली तुम 3-4 घंटा निकाल सकते, दैट आई कैन गारंटी. ऐसा ये नहीं कर सकते, तुम बहाना नहीं मार सकते कि आई वाज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड आई कुडंट प्रिपेयर. ऐसा नहीं होता. इन व्हिच मंथ you finished your total subjects in the first attempt? They are asking first attempt में कब खत्म हो गया? Okay, फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली नवंबर एंडिंग में, जैसे क्लासेस खत्म हुई थी तभी मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था. सिलेबस हो गया, नवंबर एंडिंग में हो गया था. एक ही टॉपिक बचा था शायद, वो दिसंबर के मिड में लिया था, गैप हो गई थी. तो ऐसा था कि दिसंबर में फर्स्ट वीक था दिसंबर का, आई रिमेम्बर कि उस समय मेरा कॉलेज एग्जाम्स होती थी. तो मेरी कॉलेज एग्जाम ऐसी थी, सेमेस्टर वाइज एग्जाम थी, तो वो ऐसी थी कि एक दिन एग्जाम होगी, उसके अगले दिन छुट्टी, उसके अगले दिन एग्जाम होगी, लाइक दैट. कुछ 1 वीक एग्जाम थी, 1-2 वीक, 1-1.5 वीक एग्जाम थी. तो उस समय भी मैंने दिसंबर में ऐसा किया था कि मैं जिस दिन एग्जाम होती थी, आई वाज अबाउट टू वेक अप एट 3 AM. तो मैं सुबह वो प्रीफर करता हूँ. मैं सुबह की पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग. कोई उठा नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप चला के भी कोई फायदा नहीं है. तो और सुबह से भी एक ही मुश्किल काम है, सुबह उठना.
अगर उठना आ गया तो फिर एवरीथिंग इज इजी, और मतलब यू कैन मैनेज लाइक वेरी लाइक अच्छे से, बहुत अच्छे से तुम मैनेज कर सकते हो। तो वेर आई वॉज, हाँ एग्जाम। हम्म, तो एग्जाम जब देता था, तो जैसे आज एग्जाम है तो आज सुबह उठ के 3 बजे उठ के मैं पढ़ता था। मुझे ये पता चल गया था कि हम इंजीनियर ऐसे करते हैं कि पूरी रात, एक लास्ट रात को ही पढ़ते हैं, पूरा समय तो पढ़ते नहीं है, लास्ट रात को पढ़ते हैं। और मैंने उसमें भी देखा कि हमारा सिर्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है सर। हम क्या करते हैं कि लाइक रात भर सिर्फ बैठे हैं और बुक खोल के बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही चीजें चलती है, और बहुत जन रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ लोग, मतलब हॉस्टल में जाता था मैं उस समय, तो दोस्तों के साथ पढ़ने की कोशिश करता था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट हमारे माइंड को बता रहे हैं कि हम रात भर जगे और हम पढ़ रहे हैं। तो ये जब मुझे समझ गया था, तो मैंने सारे लाइक जो भी मटेरियल है वो जमा के रखा था, और आई स्टार्टेड एट 3 AM। 3-4 घंटा पढ़ा, दैट्स इट, आई हैव गिवन एग्जाम। बाद में एग्जाम देने के बाद अगले दिन जो गैप है उसमें मैंने गेट की पढ़ाई की है। तो जो भी 2 एग्जाम के बीच में का जो दिन था उसमें भी मैंने गेट की पढ़ाई की है, उसी दिन सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, और ऐसे ही निकाला है। और लाइक ऊपर वाले का करम है कि फेल नहीं हुआ बट पॉइंटर वाज नॉट दैट गुड। तो ऐसा सब सीन हुआ है उसके पॉइंटर बाद डज नॉट मेक दिसंबर। सेंस ना, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन गेट रैंक। पॉइंटर 65% होगा तो हो जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, 65% होना चाहिए। तो बस मेरा बस कुछ हो जाएगा। 68% आता है। हाँ, बस हो जाएगा। वो हाँ पॉइंटर नहीं चाहिए, पीएसयू के बारे में और कोई जॉब गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में 65% बस हो जाएगा। एग्जैक्टली। 1 minute, फरहान। सो दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एसओएम एंड आरसीसी। अभी तक पूरा रिमाइनिंग खत्म हो गया, ये रिवाइज करो। एसओएम आरसीसी टाइम होगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, नहीं होगा छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वॉट एवर कंप्लीटेड अच्छे से अच्छे रिवाइज करो। 5 times you need to finish revision before gate examination. It's not the time, because if you take SOM and RCC it will take 2.5 months to finish. So don't waste your time that much. Go ahead with already completed subjects. So they are asking रिवीजन स्ट्रैटेजी, कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी था आपके पास? रिवीजन स्ट्रेटेजी यही था कि जैसे जैसे टाइम मिलता था, जो भी पुराने सब्जेक्ट हो गए, काफी समय हो गए, तो जैसे मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ था 2019 में, मैंने गेट दिया था, तो 2018 2017 से मैंने स्टार्ट किया था, 2017 एंड से। हम्म, तो लेटेस्ट से 2018 जनवरी से मैंने एकदम लाइक सीरियसली स्टार्ट किया। तो जनवरी से लेके अगले जनवरी तक 1 साल टोटल, तो वो स्पैन था। तो उस समय में लाइक बहुत चीजें भूल जाता था, तो जब मैं रिवाइज करता था मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे फिर से पूरा पढ़ना पड़ता था, लाइक फिर से पूरा रिकॉल करना पड़ता था, वही इफिशियंसी फिर से लाना पड़ता था। तो तब मुझे समझ में आया, लाइक काफी लेट समझ में आया रिवीजन का इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, और लाइक यूट्यूब यूट्यूब पे से दिखता था, इतना कुछ पता नहीं चलता था रिवीजन वगैरह इंपॉर्टेंट होता है वगैरह। तो प्रैक्टिस करते रहता था, उससे भी रिवीजन होती थी। टेस्ट सीरीज देता था, उससे भी रिवीजन होती थी। और रिवीजन ऐसा करो कि यू कैन मैनेज द थिंग्स लाइक, एक जैसे हो गया सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आप तो उसको प्रिपेयर कर ही रहे, शॉर्ट नोट्स बना ही रहे, तो दैट्स वन काइंड ऑफ रिवीजन। फिर उसके बाद कुछ समय बाद तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, तो पुराना सब्जेक्ट ब्लर होना शुरू हो जाएगा, देन यू रिवाइज दैट अगेन। फिर बाद में और कुछ समय बाद, लाइक अगर 1 महीने बाद वो और ज्यादा ब्लर होने की कोशिश करोगे, मतलब एक काम करना है, अगर लाइक नहीं समझ में आ रहा है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि एक टेस्ट सीरीज दे दो, लाइक सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होती है, वो टेस्ट सीरीज दे देना। टेस्ट सीरीज से समझ में आ जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है, कितना याद है कितना नहीं याद है। देन यू कैन रिवाइज अकॉर्डिंगली। अगर तुम्हें अच्छे से टेस्ट सीरीज दे दी तो मतलब रिवीजन की जरूरत उतनी नहीं है, यू कैन रिटेन फॉर 1-2 वीक्स मोर। बट अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं गई, तुम्हें याद नहीं आ रही चीजें, फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे, तो तुम्हें फिर से ये करना है। ऊपर से सर मैं लाइक मेरा जो लाइक क्लासेस थे, इस क्लासेस वो मेरे घर से, और कॉलेज भी मेरे घर से 12-13 किलोमीटर दूर था, तो मैं लाइक बाइक से आना जाना करता था। तो एट दैट टाइम ऑल्सो कि जब क्लास खत्म हो जाती थी, तो मैं बाइक से आते समय लाइक सोचता था कि आज क्या क्या पढ़े। इट्स जस्ट लाइक शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट एक So if you are कि saying this, na, रिकॉग्नाइज करना कि आज क्या क्या हुआ। हाँ if you are दैट्स saying इट। like this, na, they feel like the same words, whatever KP sir strategy session में बोलेगा, same words are coming from your voice. I will say this
going by college bus. Short revision करो. So once subject is completed, subject wise test series लिखो, mistakes क्या है वो notes में लिखो, revise करो, same words you are repeating. हाँ, एक्चुअली एक्चुअली देखने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिकॉल, हाँ माइंड में हाँ रिकॉल करो कि अच्छा वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था। फिर नहीं याद आ रहा तो जहां पे भी तुम पहुंचते हो बाद में लाइक यू जस्ट सी दैट, yeah. तो वैसे ही होता है। I don't know who is this RP. You are asking about two best test series. So he has not written any other test series other than Ace Academy. He is a Ace Academy old student. So best test series, if it is for GATE examination, any test series, every coaching center will provide you best test series only. No doubt about it. Because they have the best faculty, they will prepare the good questions only. That is up to you. पहले आपके पास एक टेस्ट सीरीज था, ये खत्म करो पहले. We have so many questions, so many tests. Without completing that, you are thinking about second one. Again, you started second one after 5 tests and thinking about third one. ऐसा मत करो. पहले आपके पास कोई कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज होगा, ये खत्म करो. खत्म करने के बाद मेरे को बताओ. I will tell you what is you have to do. So first finish the entire test series. It will take at least 2.5 months to finish all tests in any coaching center. पहले ये खत्म करो मिस्टर आरपी. I'll comment something in test series. Yeah, Like, can I comment? go ahead, go ahead. हाँ, तो एक्चुअली बहुत जनों का डाउट होता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, क्या करे। तो लाइक हर इंस्टीट्यूट, हर लाइक कोचिंग क्लास आजकल टेस्ट सीरीज दे रही है, राइट। तो आपको पता है कि कौन से टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, लाइक आपने सुना रहता है सभी से। तो कुछ टॉप के लाइक 5-6 तो आते ही है, तुम्हें पता है। तो उसमें से तुम कोई भी ले सकते हो, और टेस्ट सीरीज ज्यादा महंगी नहीं होती है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो आई विल सजेस्ट कि लाइक 2 टेस्ट सीरीज कम से कम लो, देन यू गिव 1 टेस्ट सीरीज फ्रॉम दिस एंड 1 टेस्ट सीरीज फ्रॉम दिस। अब क्या होता है कि समवन विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस टेस्ट सीरीज, समवन विल बी मोर कंफर्टेबल इन दैट टेस्ट सीरीज। तो जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन होता है, तो जो भी तुम जिसमें भी तुम मतलब जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, उस कोचिंग का तुम टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो you will get more marks, you will feel like motivated. तो वो एक वर्क करता है, तो इसीलिए। और हर किसी का अलग अलग कंफर्ट होता है, किसी को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा सूट करते हैं, किसी को न्यूमेरिकल ट्विस्टेड क्वेश्चन ज्यादा सूट करते हैं। तो उस टाइप से हर किसी का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो आई विल सजेस्ट कि तुम डिसाइड करो कि तुमको कौन सी टेस्ट सीरीज देना है। ओम प्रकाश, बट फोकस ऑन वन टेस्ट सीरीज। Focus on one test series. Yes, that is very important. ओम प्रकाश प्लीज ट्राई टू कंप्लीट। डाउट कहाँ पूछेगा? सो वी हैव अवर टेलीग्राम चैनल केपी सार स्टूडेंट्स। ये टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो यू नो, जस्ट केपी सिविल इज माय पर्सनल टेलीग्राम नेम, और एल्स यू कैन सेंड मी पर्सनली योर डाउट्स, और एल्स यू ज्वाइन द टेलीग्राम केपी सार स्टूडेंट्स। देन Sir, I think many were asking some questions and I am unable to see all. Yeah, so you just like take any question, I'll answer. Like you just select. Yeah, I'm seeing the messages because they will ask each student individually. Guys, please understand, saying and clearing each and every student's preparation, it will take a long time. Overall view we will discuss. If you are completing FM, environmental, transportation, remaining बचा हुआ क्या करेगा, और दूसरा स्टूडेंट पूछेगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटल स्ट्रक्चरल क्या करेगा। ऐसा होने के बाद सेशन लेंथी हो जाएगा। ऐसा पर्सनल इंडिविजुअल प्रिपरेशन का बारे में होगा तो टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओवरऑल और वी कैन मेक वन मोर वीडियो आफ्टर दैट। सो ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेगा। So what is the role of class notes questions? How many times you solved class notes question? Class attend किया ना, full length class आप लिख दिया। Class notes questions. How many times you prepared? Yes. One time? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर। No, आप लाइक क्लास में मैंने नोट्स बनाया। हाँ, नोट्स बनाया, नोट्स में क्वेश्चन आना, नोट्स में क्वेश्चन आना, कितना बार रिवाइज किया आप? ओके तो एक्चुअली मैं ऐसा करता था कि लाइक क्वेश्चन जो रिवाइज करना होता था वो लाइक रिवीजन में आ जाता था। तो जब शॉर्ट नोट्स हम देखते हैं तो शॉर्ट नोट्स में लाइक क्वेश्चंस नहीं आते, हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर मैं 2-3 बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं फुल नोट्स के लिए जाऊंगा रिवीजन करने। ऐसा नहीं कि एक बार शॉर्ट नोट्स को लग गए तो पूरा लाइक शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं।
क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स में हम कुछ कुछ चीजें लाइक इंक्लूड नहीं करते जिसके साथ हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट भले ही हम कोई कंसेप्ट के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब उतना रिवीजन की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो भी ब्लर होना शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा। और क्लास नोट्स क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, तो जब भी मिस्टेक्स होती थी मैं उसको हाईलाइट करता था और मैं खुद के लिए कमेंट करता था कि तूने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, लाइक दैट आई रोट मेनी टाइम्स। तो जब भी वो देखता था तो वो ट्रिगर होता था, मतलब पूरे क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जस्ट वही फोकस होता था कि ये गलती हुई थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो भी एक टाइप का रिवीजन हो जाता था। तो आई सजेस्ट लाइक दैट कि अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, 2-3 बार करने के बाद एक बार तो भी लाइक फुल नोट्स का रिवीजन करो। और बिफोर गोइंग टू गेट एग्जाम ऑल्सो जनवरी में एक बार तुम्हारा फुल नोट्स का रिवीजन होना चाहिए, आई फील सो। So how many revisions you have done before exam? Total, overall. एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत ज्यादा वर्क किया है। लाइक रिवीजन ही करते रहता था, लाइक डेली रिवीजन तो था ही, उसके साथ बाकी की चीजें चलती थी, रिवीजन इज कंपलसरी। What about previous year questions? What is the role of प्रीवियस ईयर revision? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लाइक अच्छे से बताएगा कि गेट एग्जाम आता कैसे, कोई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वही वही क्वेश्चंस पूछे गए गेट एग्जाम में, राइट। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, भले ही नए आएंगे बट कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने पानी में हो, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक और कौन सा टॉपिक का कौन सा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारा जो एनालिसिस करके रखते हैं कोचिंग क्लासेस, वो किस बेसिस पे करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी लाइक रिलेट करता है, क्योंकि कोई कोचिंग क्लास नहीं निकालने वाला गेट एग्जाम, राइट। तो किसी के कोई इतने भी कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, भले होते हैं कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, आईआईटी से, बट इतने भी कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं। तो जो भी लाइक एनालिसिस होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होता है। तो तुम भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे तो लाइक प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको। एंड यू कैन डू वन थिंग, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जैसे अभी रिसेंटली 2021-2022 का गेट एग्जाम हुआ, राइट। तो you can do one thing while solving the previous year question. You don't solve for 2021 and 2022. You just at the end of the time you just give the 2021, like you just download from the net 2021 exam and you just give as a gate exam. You'll get a motivation. You will get like you will know how where you lie and like that you can level of exam and how you are you finishing in the 3 hours or not, time management भी हो जाएगा। That is very important. Exactly. Time management. और गेट के क्वेश्चंस रहेंगे, मेन गेट के क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम हो चुकी है। हाँ, correct. That will be good. Dattatreya Patil and Om Prakash Vista. I told you already. So other educators का बारे में मत बात करो इधर. So KP sir is different level. I will answer each and every student doubt in WhatsApp or Telegram channel. आपको कोई डाउट होगा तो मैसेज करो. So you can ask any student. Every student will get the reply within 1 hour, not more than that. Yes, sir. Sir always reply and sir always motivate. So you don't worry about it. You can message me through WhatsApp or Telegram. So you will get the reply to your doubts, all doubts. And this is a regular question from the students. You got 147 rank. What is the motivation for the second attempt? What is the motivation to consistently prepare for the next attempt? What is the force behind it? सबसे पहले फोर्स तो आप ही हो सर। जोक्स अपार्ट, Saikat ji, क्या he is asking, I think he asked the question for around 10 times. What is the motivation for second attempt? Saikat एक्चुअली got the answer. क्या होता है कि Yeah, go ahead. क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भले ही तुम्हारे मार्क्स आओ नहीं आओ, बट यू नो योर कैपेबिलिटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कि लाइक अगर तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हो फिर भी तुम्हारे लाइक दिल को पता होता है कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिकॉज समथिंग यू हैव डन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो समथिंग से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि मैंने 50+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए थे, वैसे तो 200+ टेस्ट सीरीज हो गए थे मेरे, जो फुल लेंथ थे 50+ थे, तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा।
तो लाइक काफी अच्छा रैंक आता था और हमेशा केपी सर मोटिवेट करते रहते, तो उससे मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। तो जब 147 आया तो लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रैंक, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बेटर रैंक। लेकिन लाइक तो वो चीज थी कि एक और अटेम्प्ट देना चाहिए बिकॉज आई डिजर्व मोर, ये मुझे कहीं ना कहीं पता था। लाइक लगता था कि लाइक इससे अच्छा रैंक मैं अचीव कर सकता हूँ, यहाँ पे लाइक रुकना नहीं है। तो इसीलिए और वो कैसे पता था, तो मेरे पास जो भी प्रैक्टिस करता था, जो भी मुझे समझ में आती थी चीजें, जो भी टीचर्स बात करते थे, जो भी हमारे डिस्कशन होते थे, जो भी फैमिली सपोर्ट करती थी, और जो भी टेस्ट सीरीज में मार्क्स मिलते थे, इन सब चीजों को क्यूमुलेटिव करके जब आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि लाइक यू कैन गेट अ गुड रैंक और नॉट। नो वन एल्स कैन टेल यू कि तुम हाँ अचीव कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक सर कैन आई गेट अ गुड रैंक, मैं उनको जानता भी नहीं, पहली बार लाइक मैसेज कर रहे हैं लाइक सर कैन आई गेट अ टॉप 100 रैंक। तो ये सवाल होता है। तो एक्चुअली एवरीवन, मतलब अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एवरीवन कैन गेट अ गुड रैंक। तो वो लेकिन सिर्फ ये है कि तुम्हें खुद खुद से वो आवाज आनी चाहिए कि लाइक हाँ मैं मतलब ला सकता हूँ। इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट वॉइस इनसाइड फ्रॉम इनसाइड यू, तो यू विल लाइक यू कांट अचीव द रैंक। तो Good. वो आना चाहिए, So that is किसी और के बोलने से नहीं होगा। so drop pressure alpha. For your drop pressure also same answer. Pressure you are giving into your mind. If you feel that you have been improved than yesterday, today, if you have been improved tomorrow than today, so that pressure नहीं हो जाएगा। रैंक मार्क्स वो छोड़ दो, आपका मालूम हो जाएगा ना इंप्रूवमेंट था नहीं था। सो वो इंप्रूवमेंट होगा तो प्रेशर मत ले लो। इंप्रूवमेंट कंपेयर टू लास्ट टाइम इज नॉट देयर, देन यू टेक द प्रेशर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सर एक अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि लाइक अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है राइट, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 months यू हैव या एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट नाउ इटसेल्फ। तो आई सजेस्ट कि लाइक यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट, यू कैन होप फॉर द गुड रिजल्ट, बट यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। यस Like you have to prepare, just you focus on your hard work now, like how you are preparing your strategies, you focus on your strategies like how you are managing the things, how you are doing revision, and how you are getting the like how you are minimizing your mistakes in test series. So when you will achieve that, you will get confidence automatically. So जो भी जज करना है वो दिसंबर एंडिंग में करो। लाइक जो भी अभी टेस्ट सीरीज दोगे उसमें से भी जज नहीं करना है, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज इसलिए दे रहे हैं। देखो अगर अभी तुम परफेक्ट हो तो डायरेक्ट गेट एग्जाम लिखो ना, टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं? टेस्ट सीरीज इसीलिए दे रहे हैं कि कोई परफेक्ट होता नहीं है स्टार्टिंग में, उसको इंप्रूव करना पड़ता है। तो अभी से अगर खुद को जज करना शुरू करोगे तो दैट विल नॉट बी गुड। तो अभी सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो, एंड टाइम पे जज करना। जब तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत इम्प्रोवाइज हो जाएगा, तो जब जनवरी एंडिंग आएंगी तब तुम गेट एग्जाम सॉरी टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, मतलब टेस्ट सीरीज दोगे तो उस टेस्ट सीरीज पे से खुद को जज करना शुरू करना, उसके पहले टेस्ट सीरीज से मत जज करना। तो ये मैं बोलना चाहूंगा बस। So Ninad, I will talk with you separately. I understand your feeling, Ninad. We'll discuss it separately, not here. Okay, don't worry. And all the students are asking PSU how many marks? At least 75 to 80 marks, 100 to 150 rank. These are required to get the job in PSU. Okay, guys, minimum 75 बट to 80, even more than also very good. So 100 to 150 rank is nice to get it. it all depends, it all depends. It all depends, year to year Like it may some vary also. some are there like who got 700 rank, they are also in PSU, That like depends on some caste wise. criteria. Huh. If some are getting like 50 rank also, they are not in PSU, luck wise. So Okay. if some, so like if you are getting under 100 rank, for sure you will get many opportunities, I'll suggest that. But if you are not getting 100 under 100 also, still there are many opportunities depending on the situation, like COVID ना हो, now will not come, now COVID will not come, so ठीक है। तो सीट्स कितने होते हैं, कैसे सिलेक्शंस होते हैं, और कौन सा PSU है, इस सब चीजों पे। और बहुत सारे मिनी रत्न भी होते हैं
तो बहुत सारे लोग वो भी लाइक प्रीफर करते हैं। तो तुम उसके लिए भी लाइक तुम्हें जब भी तुम्हारा गेट एग्जाम हो जाएगा, हम फिर से लेंगे लगे तो सेशन आफ्टर पोस्ट गेट गाइडेंस। लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा कि जब भी गेट एग्जाम हो जाएगा, जस्ट बी लाइक अपडेटेड, बी अपडेटेड कि कौन से पीएसयूज है और कौन से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, बिकॉज देर आर मेनी पीएसयूज एंड देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट। बस हमें पता नहीं चलता है कि कब नोटिफिकेशन आ जाता है और चले जाता है। यू शुड बी अपडेटेड। तो रैंक का भी मत सोचो, यू जस्ट फोकस ऑन अंडर 100, यू विल डेफिनेटली गेट। आफ्टर गेटिंग रैंक, लाइक जो भी आया उस पे से हम डिसाइड करेंगे उसमें से कैसा बेस्ट निकाल सकते हैं, That is दैट वी विल थिंक लेटर। बट अभी हमारा काम है कि अभी मेहनत करना है और बेस्ट रैंक लाने की कोशिश करना है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लाइक वट एवर बेस्ट यू कैन ड्रॉ। so ये पूछ रहे हैं, is there any separate plan for maths and aptitude? मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रिपरेशन में। अगर एप्टीट्यूड और मैथ्स इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन एंड न्यूमेरिक्स, तो जब भी तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा, लाइक जैसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि एक खंबा है, पोल है, एंड देयर इज अ ट्रेन एंड ट्रेन इज गोइंग, तो ये जब भी सवाल आता है तो यू इमेजिन वन पोल इज देयर, राइट, वन ट्रेन इज देयर, इट्स गोइंग लाइक। तो जब तुम्हारा इमेजिनेशन होगा देन यू कैन सॉल्व इट वेरी क्लियरली। तो जब तुम एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा न्यूमेरिकल पावर बहुत बढ़ेगा और तुम्हारा इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ेगा। यही इमेजिनेशन तुम्हारे सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। तो जब भी सब्जेक्ट के कोई भी कंसेप्ट रहेंगे, कंसेप्ट में कुछ चीजें होती है, तो जब तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन बनेगी रिगार्डिंग दैट, तो तुम ज्यादा देर तक उसको रिटेन कर सकते हो और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो जो लाइक कोई भी कंसेप्ट समझने के लिए इमेजिनेशन पावर होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एप्टीट्यूड अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एप्टीट्यूड जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। लाइक मेरे केस में ऐसा था कि लाइक मेरा एप्टीट्यूड अच्छा ही था, बोल सकता हूँ मैं, आई थिंक सो, ठीक है। तो मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, तो आई डिडंट लाइक उतना मैंने एफर्ट्स नहीं डाला, जस्ट आई सॉ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, और जैसे जैसे मैं टेस्ट सीरीज देते गया, मेरे नॉलेज को इम्प्रोवाइज करते गया। जनरल एप्टीट्यूड अच्छा था, बट गेट वाइज एप्टीट्यूड मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ा था। दैट्स अ डिफरेंट एप्टीट्यूड, थोड़ा लाइक होते कुछ चीजें। तो जिसका भी एप्टीट्यूड कम है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम लाइक प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छा होगा। और जस्ट फॉर लाइक डोंट प्रैक्टिस जस्ट फॉर एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस फॉर योर एफिशिएंसी। तुम्हारी एफिशिएंसी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, like absolutely it will increase, definitely it will increase, no doubt. So guys, your individual preparation doubts I told you already. So you have my number, WhatsApp number, you have Telegram channel name KPSR students, and मेरा पर्सनल टेलीग्राम नेम KP सिविल। व्हाट्सअप करो और टेलीग्राम करो, इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन का बारे में आपको आंसर मिलेगा। एंड मोहित 50% परसेंटेज और बिलो इन बीटेक, आप एक ही काम था, आप आईआईटी में एमटेक करो, आई गेट प्रिपेयर करो, आईआईटी में अच्छे से एमटेक करो, उनमें 65% लेके आओ, आपको जॉब मिल जाएगा, पीएसयू में जॉब मिल जाएगा। बट डायरेक्टली बीटेक से जॉब नहीं मिलेगा आपको। 50% होगा तो कोई प्राइवेट कंपनी में भी नहीं मिलेगा। द वन एंड ओनली ऑप्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू हैव टू वर्क हार्ड, try hard to get good college or good IIT or NIT MTech. Then in the MTech you have to work hard to get at least 65 or 70%, so your life will be secured. Otherwise with this 50%, it's very difficult to get a job, not only in government sector, even in the private sector also it is very difficult. And Asutosh, so I have done previously with the DRDO scientists interview session and Sure, sir. हाँ क्या हो गया? Someone is asking like about maths and aptitude marks. Actually, aptitude marks I don't remember, but it was about 13 only in all three attempts, like 14 or 15, I think so. If you allow that person, Pratik Kaple, throughout this night he will ask you questions. Okay. If you answer for each and every question, na, he has so many doubts in his mind. He is a big fan follower for you. So throughout the night, we will continue 24-hour session. Still, he is having some doubt. Okay. I'll answer one thing and we will stop then. About maths.
Maths, I feel that the previous year questions are more than enough because every branch has the maths question and there are too much. So if you solve the previous year question, these are more than enough, and after that you can go for test series and analyze from the test series. That's it. So, guys, we have done with the DRDO scientists and we have done with some state AE, AEE and some toppers also. But as per my analysis, this is the best session we have done because not about their job, not about their profile. He told you clearly explained about your preparation to get the top rank in GATE examination. Because why it was happened? After GATE preparation, he turned into teaching. That makes him to analyze how to get the top rank, not as a student. Exactly. So that give him more experience. So this is the best session ever we had in when compared with the previous sessions. Very good, Astosh. Thank you, sir. Any final words It to the means a lot. students? Any final words to the students? फाइनल वर्ड्स यही है कि लाइक प्रिपरेशन पे फोकस करो, ज्यादा इधर उधर के वीडियोस वगैरह देखो मत, ज्यादा लोगों के स्ट्रेटजीज मिक्सअप करने की कोशिश मत करो. लाइक यू जस्ट लिसन द स्ट्रेटजीज ऑफ एवरीवन बट फॉलो इन विच यू आर कंफर्टेबल. Yeah. जरूरी नहीं, और तुम्हारी खुद की भी स्ट्रेटजी हो सकती है, तुम मॉडिफाई कर सकते हो हर स्ट्रेटजी को. जरूरी नहीं कि कोई ऐसा बताए कि ऐसे ही रैंक आता है, तो जरूरी नहीं किसी ने थप्पा नहीं मारा है कि ऐसे रैंक आता है. देर आर मेनी स्टूडेंट्स who have got a rank with like self study. There are many students who have got a rank with coaching classes. There are very poor guys, there are very rich guys, there are job पे मतलब जाने वाले लोग, there are कॉलेज में जाने वाले लोग, देर आर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, और कुछ लोग है कि जो 27-28 years ओल्ड है वो भी निकाले. तो देर आर वेराइटीज ऑफ पीपल आर देयर लाइक हु आर गेटिंग द रैंक्स, एंड सभी के स्ट्रेटजीज, सबके स्ट्रेटजीज अलग अलग है. बट कॉमन थिंग ये चीज है कि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन, और तीसरा टेस्ट सीरीज. ये तीन चीजें तुम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी करके. तो कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, ये तुम चेंज कर सकते हो. तो दैट्स अप टू यू. कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर किसी का अवर्स अलग होगा. दैट्स अप टू यू. वो जो सर ने बोला था 14 आवर्स में पढ़ता था, तो डरना मत. लाइक इट वॉज फॉर लास्ट 2-3 months. ऐसा होता है कि लास्ट 2-3 months जो रैंकर पढ़ता है वो उसको याद हो जाता है. तो हर रैंकर यही बोलता है कि मैं 12 आवर्स पढ़ता था, 14 आवर्स पढ़ता था. तो वो कब पढ़ता था, वो लास्ट लास्ट में पढ़ता था. जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरे जो 14 आवर्स थे उसमें क्या क्या आता था, डिफरेंट थिंग्स विल कम इन दैट. लेकिन बहुत से लोग डर जाते हैं कि यार रैंकर तो 14 आवर्स पढ़ता था, फिर मैं कैसे, इतना तो पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं कैसे लाऊंगा ये वगैरह. तो ऐसा नहीं होता है. जो स्टार्टिंग होती है वो हम कम आवर्स से शुरू करते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं. फिर हमें खुद के बारे में समझ में आता है कि हम कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, कितना हमारे पास टाइम है, और हम कौन सा कंसेप्ट कितने आवर्स में कर सकते हैं. और हम रिवीजन अगर कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट बार बार करने से पता चलेगा, तुम्हें खुद को ही पता चलेगा कि अगर हम रिवीजन कर रहे हैं इस सब्जेक्ट का, अगर मैं जियोटिक का रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे कितने आवर्स लगेंगे. ये तुम्हें कोई और नहीं बताएगा. जब तुम 1-2 बार रिवाइज करोगे तभी तो तुम्हें समझेगा. तो मैं यही बोलूंगा कि स्ट्रेटेजी सबकी सुनो, बट लगाओ खुद की. ठीक है. तो ये चीज है, और डरना नहीं है बिल्कुल भी, रिजल्ट से डरना नहीं है, अभी रिजल्ट के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है. जस्ट गिव योर बेस्ट. So thank you, Astosh. So थैंक यू guys, सर. we have another session at 9:30. Myself and RP sir will come. Now your individual doubts वो सेशन में आपको सॉल्व करेगा. आपका इंडिविजुअल डाउट्स प्रिपरेशन का बारे में, स्टेट एग्जाम, गेट कंबाइंड में कैसा हो जाएगा, 9:30 PM में अनदर दूसरा सेशन में हो जाएगा. So all your doubts you ask there and it will be clarified. And one more thing, for those who are preparing for GATE 2023, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए, रिवीजन के लिए, और अभी प्रिपेयर करने वाले के लिए, सो माई सेल्फ launching a new batch on October 14th with environmental engineering. Our target is 100 marks in 100 days. We are not finishing full syllabus, only required topics for GATE examination and their numerical question. Myself and RP sir only finish all the technical subjects. So daily you can attend 4 to 5 hours classes, remaining 4 to 5 hours preparation.
You can get a minimum of 50 to 60 marks by attending this crash course. So we are launching this from October 14. Do join it. Okay, guys. Bye bye. Good night. Thank you, Astosh. Good night, everyone. It was a nice session. Thank you, sir.